हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter here, writing and city life, there is a most important chapter, and the next question is also important here. What do the ascent story tell us about the civilization of Mesopotamia? You know that there's a most important here. What do ascent stories tell us about the civilization of Mesopotamia? Ascent story of Mesopotamia are reliable source of information. There is a ascent story of Mesopotamia. There is a source of information. As per the story, Mesopotamia is situated between the two rivers, the Tigris and Euphrates. There's a two rivers. There's the most important play the role of Mesopotamia established here. Mesopotamia was one of the advanced civilization of its time. Its society was divided into three classes. You know that society is divided here, three phases here. The upper class, the middle class, and the lower class. There is the most important here divided of the classes of society here, upper class, middle class, and lower class. Let's see in detail. There is a here divided of society in classes here. The people belonging to upper class led a life fully of comfort and luxury and enjoy the special privilege. You know that there is important upper class, there is the fully of comfortable and luxury enjoy here. There is upper class here societies and the people. Agriculture was a main occupation of the people, and their life was normally prosperous. The religion was an important part of their life, and people worship of many gods and goddesses. The Samas was there is a main god. Samas is a main god on the Mesopotamia culture. It was the sun. It was the Samas was the main god. It was the sun. And Ziggurat was the name given to the Sumerian temple. Sumerian temple, that is the most important on Mesopotamia's worships here. Is important. The another is descriptions from the Bibles. There is according to the Bible, there is a flood was meant to destroy all from of life on the earth. This is important. The Bibles, according there, the flood was a mean to be destroyed all from of the life on the earth. However, God chose a man Noah to be ensured that life could be a continue after devastating of flood on the earth. This is the most important. And Noah is the built a boat on the ark. He took a pairs each of all now species of animals and birds on the board. The ark which is a survived, there is a flood.
is important to the pairs of each of the now species of animals and birds here. And the survival of flood when there is a things were destroyed by the flood, and this boat remained safe along with all the species. Thus began a new life on the earth, and there was a similar sticking story in Mesopotamia tradition, and where the principal character was called Zusodra as the Uttam Pistium. This important is called here Jusdara and the Uttam Pistium. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर जो है हिस्ट्री के क्लास 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है जो सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक फॉलो करते हैं। और यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ क्वेश्चन उनके लाया है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहता है कि ये सिलेबस में चैप्टर में से वो क्वेश्चन गिना चुना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक सारांश के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। त्रिपाण स्टडी सेंटर का उम्मीद है कि जो बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं उनको और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में प्राचीन कहानियाँ हमें क्या बताती है। देखिए, प्राचीन कहानी जो लिखी गई थी वो कई मायने में देखा जाए तो वहाँ के रहन सहन, खान पीन, वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताई गई। क्योंकि कोई भी कहानी हम वहाँ के रहन सहन, उनकी आदतें, उनकी जो है बुराइयाँ अच्छाइयाँ, इन्हीं चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरल सी बात है मेसोपोटामिक सभ्यता के जो है प्राचीन कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है और बहुत कुछ हमें समझाती भी है। मेसोपोटामिया की प्राचीन कहानियाँ जानकारी के बहुमूल्य स्रोत हैं क्योंकि इन्हीं कहानियों से हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि उस समय के व्यक्ति तो जीवित नहीं रह गए, लेकिन उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्राचीन बहुमूल्य चीज़ें हैं उनसे हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जर्नल सी बात है उनकी आदत कैसी थी, वो किस वातावरण में रहते थे, उनकी जीवन किस तरह लग्जरी थी कि उनकी जो है अपसेट भरी थी। तो ये सब बातें हमारे वहाँ पर खुदाई में मिली चीज़ों से हम पता करते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के कहानियाँ जो है बहुत कुछ बयां करती है। कहानियों के अनुसार मेसोपोटामिया 2 नदियाँ यानी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था और इससे हमने पूरा अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर 2 नदियाँ बह रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रावधान होगा वो बहुत उत्तम किस्म का होगा। और ये सच्चाई भी है कि ये मेसोपोटामिया 2 नदी टाइग्रिस और यूफ्रेट के बीच स्थित था। मेसोपोटामिया अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। आपको पता है कि भारत में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी उच्चम कोटि की थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मेसोपोटामिया अपने समय काल में काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता थी और इसका समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो आज के समय में ये 3 वर्ग देखने को मिलता है वो वर्ग थे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और ये आपको पता है आधुनिक युग में भी आपको देखने को मिलता है कि आपको जो है पुअर दिखेंगे, मिडिल क्लास के दिखेंगे और रिच क्लास के जो व्यक्ति आपको दिखेंगे। तो उस समय मेसोपोटामिया के समय काल में भी कुछ क्लासों को इसी रूप में वर्गों को विभाजित किया गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता के जो है कहानियाँ हमें बहुत कुछ बताती है। वहाँ की सभ्यता, वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जीवन कला, वहाँ की जो कृषि पद्धति थी, इन सभी बातों को जो उजागर करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग में क्या डिफरेंस थे और किस प्रकार ये उस समय अपना जीवन यापन करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगा। चलिए इन पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करें। अगर आगे बात करें तो देखा जाए तो उच्च वर्ग के लोग आराम और विलासिता से भरा जीवन व्यतीत करते थे और विशेष अधिकार का भी आनंद लेते थे। मेसोपोटामिया में एक खास बात थी कि जो लोग उच्च वर्ग में आते थे उनका जीवन आरामदायक और विलासिता भरा थी और उनको विशेष अधिकार दिए गए थे जिसका वो आनंद लेते थे। और देखिए आज के आधुनिक युग में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो उच्च लोग होते हैं आराम और विलासिता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और उनको बहुत सी छूट दी जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत से अमीर लोग हुए जो भारत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाए और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने इन पे कोई कदम नहीं उठाया।
कहते हैं बैंक में भी बहुत सारे फ्रॉड किए गए, बहुत से जो है लोगों ने इनको लूटा, लेकिन उनको पे कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन वही गलती अगर गरीब लोग करते तो उनका ऐसे का तैसा कर देते। तो जनरल सी बात है, उस समय भी कुछ इसी तरह के प्रावधान थे कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो आराम विलासिता भरा, और उनको सरकार ने बहुत तरह से जो है विशेष अधिकार उस समय दी गई थी। कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय भी था, कृषि जो था कुछ लोगों का मुख्य व्यवसाय था, और कृषि से ही अपना जीवन यापन करती थी। उनका जीवन सामान्य समृद्ध था और धर्म उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यानी उस समय भी धर्म जो था अपनी महत्वपूर्ण जो है हिस्सा बना रखा था मनुष्य के जीवन में। और लोग कई देवी देवताओं का भी पूजा किया करते थे, जो कि उनको काफ़ी खास बनाते हैं। समय उनका जो है मुख्य देवता थे, श्याम जो थे उनका मुख्य देवता थे, और यह सूर्य थे। ये सूर्य के नाम से जो है उस समय काफ़ी प्रचलित थे। कहते हैं जिगुराट सुमेरियन मंदिर का दिया गया नाम था। जिगुराटा सुमेरिया मंदिर को दिया गया एक विशेष नाम था, जो उस समय उनकी विशेषताओं का जो है बखान करता है। अगर बात आगे हम करें, बाइबल से एक और जो है वर्णन मिला है। बाइबल से एक और वर्णन मिला है कि बाइबल के अनुसार बाढ़ का जो है उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करना था। ये बातें बाइबल में जो है बेखूबी लिखी गई थी कि बाइबल के अनुसार बाढ़ जो था पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को नष्ट करती थी। हालांकि भगवान ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना कि पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ के बाद भी जीवन जारी रह सके। यानी देखा जाए तो ये बात सारी बाइबल में बेखूबी लिखी गई है, और इसी बात को यहाँ अनुसरण किया गया है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदमी नूह को चुना, जो पृथ्वी पर विनाश होने के पश्चात भी जीवन को जो है सुचारू रूप से चला सके। नूह ने एक विशाल नाव, एक जहाज बनाया, जिन्हें बोट पर जानवरों और पक्षियों के सभी जात प्रजातियों में से प्रत्येक का एक जोड़ा लिया, और जहाज जो बाढ़ से बच गए। जब बाढ़ ने जो है नीचे नष्ट हो गई तो उनका नाम अभी भी प्रजातियों के साथ सुरक्षित रही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो ये हिंदू धर्मों में भी कुछ इसी तरह जो है प्रलय की बात बताई गई थी, जहाँ पर नाव का प्रयोग किया गया था, और इसमें हर जीव जंतु को जो है लेके जो है इस प्रलय रूपी जो है विनाशकारी रूप को से पार उतरा गया था। तो देखा जाए बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है, जो मेसोपोटामिया के अंतर्गत आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जो है परमात्मा ने नूह को चुना। नूह जो था एक ऐसा था जो सभी जीव जंतु सभी स्पीसीज को अपने साथ लेके नाव में रख के जो है नैया पार किया था, और जो बच गए सब के सब जो है पृथ्वी पर प्रलय आ गई थी। कहते जब बाढ़ ने उन चीज़ों को नष्ट हो गए तो उनके नाम सभी प्रजाति साथ सुरक्षित रही, और आगे चल के यही प्रजाति जो है आगे अपना जीवन जो है वृद्धि किया, और इस प्रकार पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत हुई। मेसोपोटामिया परंपरा में भी ऐसी एक अद्वितीय कहानी थी, जहाँ मुख्य पात्र को जो है शूद्र या उत्तनपिष्टम कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उस समय मेसोपोटामिया की जो कहानी थी, उस समय की दशा, उस समय कंडीशन और उस समय की बातों को जो है यहाँ पर उजागर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी थी और काफ़ी ज़रूरी भी है। आगे का दोस्तों जो क्वेश्चन होगा थोड़ा लॉन्ग टाइप का होगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें सारी क्वेश्चनों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया जाएगा, और इसके लिए आपको त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब रखने की आवश्यकता है। अगला जो होगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसके लिए त्रिपाण सेंटर को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे बनाने वाले का हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।